إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 81 کے بارے میں بات کریں گے، اور اس آیت میں بھی اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جو تزکیہ نفس کا پہلو ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 81، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ارجعوا الی ابیکم، ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے یہ بات کہہ دی کہ تم لوگ جو ہے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے باپ اجازت نہ دے دے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ تو یہ بات پہلے آ چکی ہے، اس نے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ آپ تو چلے جاؤ، میں یہاں سے نہیں جانے والا ہوں۔ وہی بات یہاں اس آیت میں ہے کہ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ اب باپ کے پاس جائیں گے تو کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اب باپ کے پاس جائیں گے تو جا کر کے کہیں گے کیا؟ پہلے تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جھوٹا بہانہ انہوں نے خود بنایا اور پیش کیا، تو جھوٹ کے لیے ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی، اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی جتنا آج سچ کے لیے ان کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ پہلو ہے جو اس آیت پر آپ غور کیجئے گا، اس پہ کہا ارجعوا الی ابیکم، کہا لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، ارجعوا لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولو اور کہو، جاؤ جب پہنچ جاؤ وہاں پر تو پہنچنے کے بعد ان سے کہنا، فقولو کہو، قل کہو، قولو اسی کی جمع کا صیغہ قولو کہو، یا ابانا اے ہمارے والد، یا ابانا اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، یقیناً تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، ان ابنک سرق، یقیناً تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم جو جانتے تھے ہم اسی کے بارے میں ہی
गवाही दे सकते थे, हम उसी के बारे में ही कुछ कह सकते थे। हमारे सामने अगर कोई चीज हो तो हम वहाँ उसकी देखभाल कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, मामले को सुलझा सकते हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और हमारी नजरों से ओझल होकर अगर कुछ किया जाए तो हम तो गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, हम गैब कहते हैं वो चीज जो हमारी आंखों के सामने ना हो, हमारी आंखों के, हमारी पीठ के पीछे कोई चीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हम कोई गैब के जानने वाले तो हैं नहीं। हमारे सामने जो कुछ होगा हम वही जान सकते हैं। तो गैब में हमारी आंख के पीछे, हमारी लाइल्मी में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो हम तो उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने तर्जमा आपके सामने पेश कर दिया है, वो भी तर्जमा जो पेश किया है समझने वाला तर्जमा, बिल्कुल लफ्ज का यानी वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग होती है उस तरह का तो हम लोग करते भी नहीं है। जो समझ में आने वाली बात होती है तर्जमे में वही बात पेश करते हैं। लेकिन यहाँ 4 बातें हैं इस आयत के ताल्लुक से जो मैं चाहूंगा कि आपके सामने पेश करूं, तो आप उसे नोट करें। पहली बात ये कि ये भाई जो अपने ही भाइयों से ये बात कह रहा है, इसमें भी जो बात कहने के लिए कह रहा है वो क्या है कि या अबाना इन्नब्नका सरक़, ऐ हमारे वालिद तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। जो बात कहने के लिए कही जा रही है कुरान ने उसे नकल किया है, तो वो बात क्या है उस पर गौर करना है आपको। तो उसमें से पहला पॉइंट है ये, 4 हमने कहा आपसे कि बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बात है, इस पे गौर कीजिएगा आप। वो क्या कह रहा है, फकूलू, तो कहो, या अबाना, आए हमारे वालिद, इन्नब्नका सरक़, यकीनन तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। इन्ना इब्न का सरा, पहली बात क्या कहना चाह रहा हूं कि इब्न का कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, या अबाना, हमारे वालिद। तो वालिद साहब को तो अपना कह रहे हैं कि हमारे वालिद, लेकिन बिन्यामीन को ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे भाई, या बिन्यामीन का नाम ही इस्तेमाल करें, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने, आपके बेटे ने, आपके लाडले ने। अगर हम उर्दू में ये कहना चाहे मेरे भाइयों तो क्या कहेंगे, आपके लाडले ने चोरी की है, आपके लाडले ने चोरी की है। आप ही ने तो बड़ा सर चढ़ा के रखा था। यानी दूसरे अल्फाज में अब बाप के सामने ये बात पेश करनी है तो इस अंदाज से पेश करनी है गोया की गलती इसमें भी बाप ही की है। अंदाज वही है, अंदाज पेश करने का ऐसा कुछ नहीं है कि जो है हमारे भाई ने ये गलती कर दी, उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताएं उन्होंने ऐसी गलती कर दी, हम कुछ नहीं कर सके इसके बारे में। वैसा कुछ नहीं है। माजरत खाना जो अंदाज होता है और बाप की इज्जत और एहतराम का ख्याल करते हुए जो बात कहने का अंदाज होता है ना, वो अंदाज नहीं है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं आप नोट कीजिए, तर्जुमा तो आपको समझ में आ गया क्योंकि इतनी अरबी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग जानते हैं। क्या कहा, इन्ना इब्न का, यकीनन आपके बेटे ने, सरका, चोरी किया है। तो हमने पहला पॉइंट क्या कहा आपसे नोट करने का, क्या कह रहे हैं, आपके बेटे ने, यानी आपके लाडले ने ये चोरी की है,
आपने ही तो सर चढ़ा के रखा था उनको, और ये आपकी उस मोहब्बत का ये समझिए नतीजा है, रिजल्ट है कि ये भाई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्हें किसी का डर कहाँ होता है, वो तो आपके लाडले हैं ना। जो आपके लाडले हैं तो आप ही ने उनको बिगाड़ा है, आप ही ने जो है अपने लाड प्यार से इनको बिगाड़ा है। आप भी तो कभी कभी घर में इस तरह से कहते होंगे ना, कभी जो है बीवी शौहर से यही बात कहती है, कभी शौहर बीवी से यही बात कहता है। घर के माहौल में ऐसा होता है ना कि आप ही ने तो इसको अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया। कभी जो है आप इसकी गलती पर इसको तंबीह नहीं करते हैं, डांटते नहीं है, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। तो पेश करने का अंदाज देखो ऐसा है, जबकि एक बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, अपने बाप से बात कर रहे हैं, तो बाप के सामने इस अंदाज से बयान करने के बजाय या इस तरह की बात जिक्र करने के बजाय कि गलती आपकी है, बात तो इस अंदाज से होनी चाहिए थी कि नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि ये तो बड़ी मिन्नत समाजत करके लेके गए थे और बाप तो इजाजत नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी मिन्नत समाजत पर बाप ने इजाजत दी और लेकर के गए, और बड़े जो है अहदो पैमान भी बांध रहे थे कि हम जरूर वापस लेकर के आएंगे। और हम इतने भाई, इतनी ताकत वाले, कुव्वत रखने वाले, इतने बहादुर हम भाई, हमारी मौजूदगी में इनका कुछ हो जाए, ये कैसे जो है हो सकता है। हमारे होते हुए इनका बाल भी बेकार नहीं होगा। कहाँ वो डायलॉग मार करके गए हुए थे, और कहाँ हाल ये है कि अब जब वापस आना है तो बाप के सामने कैसे पेश करना है बात को कि गोया की गलती पूरी बाप की ही है। तो पहली बात ये थी, पहला पॉइंट ये था। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। याद रखिए, अगर आपको लगता भी है कि गलती सामने वाले की है, उसके लाड प्यार से ऐसा कुछ हुआ है, लगता भी है, तब भी वालिद हैं, उनका एहतराम करते हुए इस तरह की बात उनके सामने नहीं कही जाती है। ये अदब के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से ही वो बिगड़े भी नहीं है, उनसे कोई गलती भी नहीं हुई है। वो तो आप जान रहे हैं कि ना उन्होंने कोई चोरी की है, ना उनसे कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ मामला यहाँ पर है नहीं। लेकिन ये जो बात पेश की जा रही है उसके लिए मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो भी कि ऐसा कुछ हुआ भी है, तो भी उस मौके पर इस तरह की बात करने से मामला और बिगड़ता है। बल्कि अगर आपको मामले को सुधारना है, सुलझाना है, घर के माहौल की बात कर रहा हूँ, तो आपस में अंदाज ये होना चाहिए कि भाई गलती तो दोनों की है। हमसे पता नहीं कहाँ क्या जो है कमी रह गई कि आज हमारा ये बच्चा, हमारी ये बच्ची हमारी बात नहीं सुन रहा। अंदाज जो है यही होना चाहिए। तो बयान किया, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि ये कहने के लिए जो कहा वो क्या है कि फकूलू, तो कहो, या अबाना, ऐ हमारे वालिद, इन्न इब्नक सरक, इन्ना, कहा इन्ना। अरबी में इसी को कहना हो कि आपके बेटे ने चोरी की है, तो अरबी में सिंपल सेंटेंस ये भी होता है कि हम कहेंगे सरका इब्नु का, सरका इब्नु का, आपके बेटे ने चोरी की। लेकिन यहाँ वो अंदाज नहीं है, यहाँ कैसे कहा गया है, इन्ना इब्नक सरका। पहले तो इन्ना इस्तेमाल किया गया, उसके बाद क्या है, इब्ना का ये पहले आया है, जो कि सरका के बाद फाइल होने की वजह से उसको बाद में आना चाहिए था, लेकिन उसको पहले इस्तेमाल किया गया है। तो अरबी जबान में इससे सेंटेंस में ताकीद पैदा होती है। तो इन्ना में भी ताकीद है, इब्नका में भी ताकीद है। और अरबी जबान में बड़ी ताकीद के साथ कोई सेंटेंस जब पेश किया जाता है तो कब पेश किया जाता है, वो ये बलागत का एक हिस्सा है। मैं आपके सामने, अरबी बलागत का एक हिस्सा है, मैं वो
पहलू भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उसको भी जो है पेश कर रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा कि यही दूसरा पॉइंट है कि अरबी बलागत में अगर हम किसी के सामने कोई बात पेश करते हैं, कोई सेंटेंस जो है उसको बयान करते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है जब उस आदमी को उसके बारे में पहले से कोई खबर नहीं होती है। तो उसके सामने जब हम कोई बात पेश करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन अगर उस आदमी को हमारी बात पर कोई शक है, शुबह है, यानी ही हैज एनी डाउट, और हमें ये अंदाजा है कि वो हमारी बात का इनकार कर सकता है, हमारी बात पर यकीन नहीं करने वाला है, तो ऐसे मौके पर अरबी ज़बान में जो हम बात उसके सामने पेश करते हैं उसको ताकीद के साथ पेश करना होता है। और ये भी होता है कि हमारा अंदाजा जितना ज्यादा है कि जितनी सख्ती से वो इनकार कर सकता है, यानी हमारा अंदाजा है कि वो इसको बिल्कुल जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, इनकार कर देंगे, इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जितना उनके इनकार के करने का मामला जितना ज्यादा हो सकता है, हमारे कलाम की ताकीद भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। कई कई ताकीद इस्तेमाल करके बात पेश करते हैं, तो यहाँ वही बात। अब इस भाई को यकीन है कि हमारे बाप हमारी इस बात को मानेंगे नहीं कि उनके बेटे ने चोरी की है, वो तो मानेंगे नहीं, तस्लीम करने वाले नहीं हैं वो। इसीलिए अब बात को पेश करना है तो कैसे पेश करना है? बड़ी ताकीद के साथ पेश करना है, ताकि वो बात को समझें और माने कि यकीनन ऐसा हुआ है, हम झूठ नहीं कह रहे, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमने इसमें कोई गलती की हो, बल्कि हकीकत में ऐसा ही हुआ है। तो ये अरबी बलागत का एक हिस्सा है। ये दूसरा पॉइंट था, यानी भाइयों के अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने चोरी की है और यकीनन चोरी की है, तो ताकीद के साथ वो पेश कर रहे हैं, वो झूठे भी नहीं है इसमें। अब याद रखिएगा, इस पूरे मामले में झूठे नहीं है ये लोग, जो इनके सामने थी बात उसी के लिहाज से वो जाकर के पेश करने के लिए कह रहे हैं भाई कि जा करके आप ये पेश करो, जो बात सच्ची है वही बात उन्हें पेश करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन उन्हें ये यकीन है कि आज हमारी ये सच्चाई भी हमारी बाप की निगाह में मशकूक होकर के रह गई है। आज हमारी सच्चाई की भी हमारी बाप की निगाह में कोई कद्र नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, हमारी सच्चाई की, क्योंकि इन्होंने अपनी ये वैल्यू खुद पहले गंवा दी है झूठ बोल करके। यही होता है मेरे भाइयों कि झूठ बोलने वाला अपना एतबार खो देता है, अपना एतमाद खो देता है, और जो सामने वाला उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, उसे वो जो है जो एतबार रखता है उसे खो देता है। तो अब सच्चाई के को भी उसे बड़ी ताकीद के साथ बयान करनी पड़ती है। आदमी झूठ को हमेशा ताकीद के साथ बयान करता है। ये नफ्सियाती चीज है इंसान की, यानी नफ्सियाती यानी साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक है कि जब आदमी झूठ बोलता है तब बड़ी ताकीद के साथ बोलता है, क्योंकि उसकी जबान उसके दिल का साथ नहीं दे रही होती है। जबान से कुछ और कहता है, दिल में बात कुछ और होती है, जो हक है वो दिल में है, जबान से झूठ बोल रहा है। तो ऐसे मौके पर उसे उसका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है ना, वो बड़ा अंदर से लरसता रहता है, कांपता रहता है, तो कहीं जबान लड़खड़ा न जाए, उसके लिए उसे बड़ी ताकीद के साथ बात पेश करनी पड़ती है। सच्चाई को इस तरह के सहारों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई के वक्त इंसान जबान से वही कहता है जो उसके दिल में होता है। उसको ताकीद के बैसाखी की जरूरत नहीं होती है, सहारे की जरूरत नहीं होती है कि ताकीद के साथ बात को पेश करके मनवाने की कोशिश करें, उसे इसके सहारे की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन यहाँ इन भाइयों को ताकीद का सहारा लेना पड़ता है, जो इनके लिहाज से, इनके इल्म के लिहाज से हक है कि चोरी किया है। जितना ये जानते हैं उसके लिहाज से ये बात है कि उसने चोरी किया है, क्योंकि चोरी का सामान उन्हीं के बैग में मिला था। ये भाई तो यही जानते हैं, हकीकत तो नहीं है कि उन्होंने चोरी किया, लेकिन भाई तो यही जानते हैं। इतनी ताकीद के साथ, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम आज इनकी सच्चाई को भी मानने वाले नहीं हैं। इनके बाप इनकी सच्चाई का एतबार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पहले इन्होंने झूठ कहा है। तो एक मर्तबा भी जब किसी इंसान का झूठ पकड़ लिया जाता है, तो फिर उसकी सच्चाई भी मोतबर नहीं रह जाती है। ये दूसरा पॉइंट था, नोट कर लिया होगा, ये बड़ी ताकीद के साथ कहने की बात है। तीसरी बात, वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना। इसके दो माने यहाँ बयान किए गए हैं अरबी जबान यानी तब मुफस्सिरीन के जो है तफसीर की किताबों में दो तरह के माने इसके बयान किए गए। दो ओपिनियन है मुफस्सिरीन के। एक ये है कि वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना का माना यहाँ पर ये है कि हमने आपसे जो पहले अहदो पैमान किए थे, जो हमने आपसे वादा किया था कि हम उनकी हिफाजत करेंगे और हिफाजत के साथ उनको लेकर के आएंगे, वो हमारी निगरानी में रहेंगे। तो अब ये सवाल होने वाला है, सवाल ये होने वाला है, जब ये कहेंगे कि हाँ आपके बेटे ने, लाडले ने चोरी की, तो सवाल ये होने वाला है कि भाई आप लोग कहाँ थे, कैसे उन्होंने चोरी कर लिया, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप लोग। आप लोग तो इतने जो है यहाँ पर अहदो पैमान करके गए थे कि हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे। तो आखिर आप लोगों ने क्या किया, उन्होंने चोरी कैसे कर लिया, ये सवाल आएगा। उसी सवाल का ये जवाब है। वो सवाल करने की नौबत ना आए, पहले से ही उसका जवाब कि हमने जो आपसे अहदो पैमान किया था कि हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और वो हमारी हिफाजत में रहेंगे, हम उनकी निगरानी करते रहेंगे, ये जो हमने कहा था ना, ये जो चीज हमारे सामने हो हम उसी के जिम्मेदार हो सकते हैं, हम उसी की हिफाजत कर सकते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन अगर हमसे छुप करके अगर उन्होंने कुछ कर लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गैब जानते हैं, हम तो गैब जानते हैं। तो वो ये उसी का जवाब, ये तीसरा पॉइंट है। तो बाद मुफस्सिरीन ने इसका यही माना किया है कि हमने जो आपसे अहदो पैमान किया था उनकी हिफाजत का, वो हमारे सामने अगर कोई चीज हो तो हम उसके जिम्मेदार होंगे और हम उनकी पूरी तरीके से हिफाजत करेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हम गैब तो नहीं जानते। हम जितना कर सकते हैं वो वही है, जो हमारे सामने चीज हो ना उसी को हम कर सकते हैं। लेकिन हमसे छुपकर कुछ किया जाए तो फिर हम उसे कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकेंगे, हम जो है गैब जानने वाले हैं। तो ये एक तरह से उज़्र था उस बात का, जो पेश कहीं सवाल में चीज आ सकती थी कि आखिर आप लोग तो बड़े जो है डायलॉग यहाँ से मार करके गए थे, बोल करके गए थे कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, हमारे होते हुए कौन इनका बाल बेका कर सकता है, और फिर ये क्या किया तुम लोगों की मौजूदगी में, उन्होंने चोरी कैसे कर लिया, ये सवाल उठ सकता है। उसी का ये जवाब है जो पहले से दिया जा रहा है। दूसरा माना जो बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत का किया है वो ये, यानी इस टुकड़े का आयत के, वो माना ये है कि हमने जो कुछ कहा चोर की सजा के बारे में, जब उनसे पूछा गया था कि ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ चोर की सजा क्या है, तो इन्होंने कहा कि जिसके सामान में भी चोरी का माल मिलेगा उसी को रोक लिया जाएगा, यही चोर की सजा हमारे यहाँ है।
تو یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہنے کے لیے کہ بھائی ہم نے جو وہ سزا ان کے سامنے بیان کی تھی یہ اس لیے بیان کی تھی کہ ہم جو جانتے تھے اس کے لحاظ سے یہ سزا تھی. ہم کو کیا پتا تھا کہ ہاں بنیامین کے سامان میں وہ چوری کا مال نکل آئے گا. ہم جو جانتے تھے کہ سزا ہے یہ، اور ہم یہ جانتے تھے اس وقت کہ ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کیا ہے، اسی لیے ہم بالکل جو ہے اس کے بارے میں بے خوف تھے، اور جو سزا تھی وہ ہم نے ان کے سامنے بیان کر دی. اگر ایسا کچھ ڈر ہوتا ہمیں کہ ہاں کہیں ہو سکتا ہے ہم میں سے ہی کسی نے چوری کیا ہو واقعی، تو اگر ایسا ہوا تو ان کو روک لیا جائے گا. تو بنیامین بھی اس میں ہو سکتے ہیں. اگر کہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات ہوتی کہ بنیامین بھی ان کے سامان میں بھی یہ چوری کا مال مل سکتا ہے، تو ہم ہرگز یہ بات نہیں کہتے تھے اس وقت. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. ہم جو ہے جتنا جانتے تھے ہم تو یہی جانتے تھے کہ ہم بھائیوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اور بنیامین کے بارے میں تو ہمارا یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے. اس لیے ہم نے وہ بات عزیز مصر کے سامنے ذکر کر دی کہ ہمارے یہاں ایسے چور کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں چوری کا مال ملے گا اسی کو قید کر لیا جائے گا، اسی کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے اس آیت کے اندر ہے وہ بیان کیا. اب چوتھی بات کیا ہے؟ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. ہم تو غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی چیز ہوگی تبھی ہم ان کی حفاظت کر سکتے تھے اور ان کی نگرانی کر سکتے تھے. اگر ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کہیں کسی کام سے گئے ہیں، ہماری غیر موجودگی میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، اندر سے اگر وہ کچھ کر لیتے ہیں بنیامین، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم غیب تو نہیں جانتے. غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے. بات ان کی صحیح ہے، غیب کا علم تو کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے. اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی تبھی وہ جانتا ہے. اگر اس کے پیٹھ پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے تو یقیناً اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. نوٹ کر لیجئے گا، کبھی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بچی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، شوہر آ کے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. تم کہاں تھی، کتنی لاپرواہ ہو، کیا ہے یہ. بہت سی جو ہے باتیں ہو جاتی ہیں، گھر کے ماحول میں ہو جاتی ہیں. نوٹ کر لیجیے گا، یہ تزکیہ نفس ہے. تو بیوی سے جو ہے کہنا شروع کر، بیوی بھی ایک انسان ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ہوئی تبھی نہ ہو جاتا. وہ کسی کام میں گئی، ادھر کچھ اور ہو گیا، اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی چیز ہو گئی، تو وہ تو غیب کو جاننے والی نہیں ہے. ہاں جب اس کے سامنے چیز ہوتی ہے، اور یہ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری بیویاں جو مائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس طرح سے کی غلطی ان سے ہو جاتی ہے کہ وہ غلطی کو جانتے ہوئے بھی چھپاتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ کہ چھپاتے چھپاتے پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے. تب جو ہے پھر کسی کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں آنے والی. یہ نہیں کرنا چاہیے. غلطی کی تنبیہ بھی ہونی چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. پہلے تو خود ہی اصلاح کرنی چاہیے. ماں ہے، اس کو خود ہی جو ہے اصلاح کرنی چاہیے. اگر اس سے نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنے شوہر کو اس میں شامل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اس کے بجائے کیا کرتی ہیں یہ مائیں کہ بچے کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیے جاتے، شوہر کو پتہ نہ لگے، باپ کو پتہ نہ لگے، تو وہ غلطی ہے. لیکن اگر کبھی کچھ ہوا ہے بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے اور اس کے سامنے نہیں ہوا، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، تو پھر وہاں پر خامخواہ اسے ملامت نہیں کیا جا سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی تبھی اس کو پتہ لگے گا. اور اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں وہ تو غیب نہیں جانتی ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا.
सेम यही चीज शौहर के ताल्लुक से भी होती है, बीवी और शौहर के मामले में, कि अगर शौहर घर में है, कुछ हो गया, तो बीवी जो है, आप कहाँ थे, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने वो कर दिया, आप क्या कर रहे थे, आप क्या देख रहे थे, ऐसी बातें भी होती हैं, दोनों तरफ से हो जाती हैं, तो वो भी गलत है। गैब का इल्म तो किसी को नहीं है ना। अगर कोई चीज सामने हुई है तो ठीक है, आदमी जान सकता है, और जब सामने होती है तो पर्दा नहीं डालना चाहिए। कभी ये गलती बाप से भी हो जाती है कि बाप, जब माँ सख्त होती है बच्चे की तरबियत में, तो बाप ये गलतियां कर जाता है कि अपनी औलाद की गलतियों पर वो पर्दा डालने लगता है कि माँ को मालूम ना हो, वरना अभी डांटना शुरू कर देगी। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शुरू में अगर हमने ऐसा किया है तो बच्चे को उससे शह मिलती है कि चलो, मेरी माँ तो मेरी गलतियों पर पर्दा डाल देगी, आपको समझा लेगी, दोनों आपस में लड़ लेंगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा। ये जो आपस में लड़ लेते हैं, इसमें बच्चा बच तो जाता है, लेकिन उसकी तरबियत गलत अंदाज से हो जाती है, और आगे चल कर के ये चीजें बड़े होने के बाद, यही जो आज एरर है, यानी छोटी गलती है, कल को वही एरर मिस्टेक बन जाएगी, बड़ी गलती में तब तब्दील हो जाएगी। तब जो है सब लोग सर पर हाथ रख करके बैठ करके सोचेंगे कि अब क्या करें, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो चुका होगा। तो ये चीजें हैं मेरे भाइयों नोट करने की, उसे जो है नोट रखिए। ये तज़किए नफ्स से इसका ताल्लुक है। ये बात तो सही कह रहे हैं कि हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं थे। हमने जो कहा था, तो हमारे जो अहद पैमान किया था, जो आपसे वादा करके गए थे, तो हम इंसान की हैसियत से वादा करके गए थे, और इंसान जितना कर सकता है उतना ही करेगा। हमने वही किया, लेकिन हमारी जो है गैर मौजूदगी में हमसे छुप छुपा कर अगर किसी ने कुछ कर लिया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या दोष है, हमारी क्या गलती है। ये है बयान करने के बाद जो उसने कहा कि जा करके अपने बाप से आप लोग ये जिक्र कीजिए। तो ये थी मेरे भाइयों आयत नंबर 81। किस्सा है, कहानी है, लेकिन इस किस्से और कहानी के अंदर जो हमारे लिए इबरत और नसीहत के पहलू हैं, तज़किए नफ्स की जो बातें हैं, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसके बाद आयत नंबर 82 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा, आप पूछ लीजिए। अब अभी भी ये मसला है कि इतना सब कहने पर भी याकूब अलैहिस्सलाम इनकी बात पर यकीन करने वाले नहीं है। उन्हें यकीन नहीं आएगा, ये जो है भाइयों को यकीन है। इसीलिए देखिए, अब मजीद उन्हें यकीन दिलाने के लिए, किसी भी बात की हक्कानियत और सदाकत को मालूम करना हो, तो जाहिर सी बात है कि जो भी तहकीक का पहलू होगा, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन जिसे आजकल आप कहते हैं, वो जो जो भी उसकी शक्ल हो सकती है, आदमी उसको अपनाएगा। तो कहा कि आप वो सारी शक्लें अपना लीजिए। आपको कैसे मालूम होगा, अब ये हक को मालूम करना है, एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर आपको ये मालूम करना है तो करना क्या पड़ेगा। एक शक्ल ये है कि जा करके वहां आप खुद मालूम कर लीजिए, जाइए और जा करके मालूम कर लीजिए कि वाकई माने में क्या हुआ था, एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, आप मालूम कर लीजिए। यही है उसका तरीका मालूम करने का। यहाँ सब कुछ ये कह रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप चलिए, आप खुद चल करके देख लीजिए वो जगह जहां पर हम यूसुफ को छोड़ के गए थे, भेड़िया आया और उन्हें लेकर के गया, तो जाहिर सी बात है कि वहां कुछ न कुछ निशान तो उसके रहेंगे ना, खून के धब्बे होंगे, सारी चीजें होंगी, तो निशान तो रहेंगे। तो वहां नहीं कहा कि चलो जो है आप देख लो, क्योंकि मालूम है कि जो तहकीक करने का तरीका है, अगर शुरू कर दिया तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि उसी मौके पर उस कुएं के पास पहुंच जाए और यूसुफ के अंदर से आवाज आ जाए तो हमारी चोरी पकड़ी जाए। तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ चूंकि वो सच्चे थे,
बज़ाहिर अपने उसके लिहाज से वो सच्चे थे, जो बात कह रहे थे वो सच्ची बात कह रहे थे अपने इल्म के मुताबिक। इसलिए जो तहकीक का तरीका है उसको भी बयान कर दिया कि आप जो है जाइए उस शहर के अंदर, और जहां से हम लोग गल्ला लेकर के आए हैं वही मिस्र, मिस्र में जाइए और जाके मालूम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हक क्या है और गलत है या सही है, आपको उसका पता चल जाएगा। दूसरी शक्ल कि जो काफिला हमारे साथ गया था यहाँ से, आप उनसे भी जाकर के पूछ ले सकते हैं। वो लोग हमारे साथ ही वापस आए, हमारे साथ गए, पूरा क्या वाकया वहां पर हुआ, अब आप उनसे भी जाकर के पूछ ले सकते हैं। तो जो तहकीक का तरीका है वो बात यहाँ पर वो लोग पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है कि यहाँ पर वो सच्चे हैं अपने इल्म के लिहाज से। तो क्या कहा देखिए आयत नंबर 82 में, वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा, और पूछ लीजिए उस शहर से जिस शहर में हम लोग थे, यानी जहां ये वाकया पेश आया, जाइए उस शहर से पूछ लीजिए। जाहिर सी बात है कि आदमी शहर से नहीं पूछता, ये अरबी बलागत का एक अंदाज है। इसमें अरबी बलागत के लिहाज से एक कायदा पाया जाता है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अरबी बलागत का एक रूल है कि ऐसे भी अरबी में कहा जाता है कि आप उस शहर से पूछ लीजिए। दूसरी जबानों में भी इस तरह की बात है। जाहिर सी बात है कि आदमी शहर से नहीं पूछेगा, बल्कि शहर पे रहने वालों से पूछता है। शहर तो एक बेजान चीज है, वो क्या जवाब देगा या उससे क्या आदमी सवाल करेगा, सवाल वहां के रहने वालों से होता है। तो कहते हैं कि असल क्या है ये, वस्अल अहलल क़र्यतिल्लती कुन्ना फ़ीहा, आप पूछ लीजिए शहर के उन बाशिंदों से, शहर के उन लोगों से जो वहां पर थे। शहर की आबादी में जाकर के आप शहर में लोगों से पूछ लीजिए जिस शहर में हम लोग थे, यानी मिस्र, यहाँ करिया से मुराद मिस्र है। इसीलिए ये बात कहते हैं अरबी ज़बान में कि करिया का ये लफ्ज देहात के लिए बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यानी विलेज जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, विलेज के लिए करिया का लफ्ज बोला जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। असल करिया अरबी में कहते हैं आबादी को, चाहे वो शहर की आबादी हो या देहात की आबादी हो। इसलिए लफ्ज करिया अरबी ज़बान में शहर के लिए भी बोला जाता है, देहात के लिए भी बोला जाता है। तो कहा कि आप, और तो करिया से मुराद यहाँ पर मिस्र है। मिस्र ये लोग गए थे सामान लेने के लिए, वहीं पे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो कहा कि आप शहर वालों से भी पूछ लीजिए, जिस शहर में हम गए थे ना उस शहर के लोगों से भी पूछ लीजिए आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हक क्या है। वलईर अल्लती, ईर कहते हैं अरबी ज़बान में काफिले को। ईर जो है, असल में ईर तो अरबी ज़बान में ऊंट जो है, जो सवारियां होती है ना, उनको कहा जाता है असल में। तो इसी से यहाँ पर भी मुराद अस्हाबुल ईर है, यानी काफिले के लोग। काफिले से तो सवाल नहीं होगा, काफिले में जो लोग हैं उन्हीं से सवाल होगा। तो यहाँ पर भी अस्हाबुल ईर है असल में। वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, और आप पूछ लीजिए उस काफिले के लोगों से भी जो कि हमारे साथ आए हैं या जिनके साथ हम आए हैं। व इन्ना लसादिक़ून, और यकीनन हम सच्चे हैं। सादिक कहते हैं सच्चा, सादिक़ून उसी की जमा है सच्चे। लाम जो आया हुआ है इसमें लसादिक़ून, वो भी ताकीद के लिए। इन्ना जो इस्तेमाल किया गया है ये भी ताकीद के लिए। और ये पूरी बात अरबी ज़बान में जुमला इस्मिया कहा जाता है। इसको जुमला इस्मिया में बयान किए, जुमला फेलिया में बयान, यानी वर्बल सेंटेंस नहीं है ये, बल्कि जुमला इस्मिया है ये। तो जुमला इस्मिया में बयान करना ये खुद भी अरबी ज़बान में ताकीद का एक पहलू होता है। तो ये तीन तीन ताकीद इसके अंदर जमा करके वो कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं हम बिल्कुल सच्चे हैं।
اس میں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہا کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے، جھوٹ ہم نے کہیں اس میں نہیں ملایا ہے، ذرہ برابر بھی کہیں جھوٹ نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کر لیا اس پوری آیت کے تعلق سے بھی بھائیوں نے کتنے جو ہے تاکید کے ساتھ اب اپنی بات یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ بھائی۔ سب کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ پہلے جو غلطی ہو چکی ہے جھوٹ بولنے کی، اس غلطی کا یہ خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں کہ اب ان کی سچائی پر کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے اندر سے ان کا دل جو ملامت کر رہا ہے اپنی بات کو، سچائی کو آج بڑی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اس جو ہے تاکید یعنی اس خبر کو بڑی تاکید کے ساتھ یقیناً ہم سچے ہیں۔ اپنی سچائی کی دہائی اسی کو دینا پڑتا ہے میرے بھائیوں، جس کا جھوٹ کبھی پکڑا جاتا ہے، جس کی سچائی کا لوگوں کو یقین ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اسے اپنی سچائی کی دہائی نہیں دینی پڑتی ہے، اپنی سچائی کے لیے اسے صفائی نہیں دینی پڑتی ہے۔ یہ باتیں ہیں، اسے ہمیشہ نوٹ رکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 83 میں کیا کہا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ سب جب باتیں کہہ دی گئی، اب قصے کے لحاظ سے وہ لوگ آئے اور آ کر کے یہ پوری باتیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کی، تو اب یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ اس میں ایک نبی کی زبان سے نکلنے والی یہ باتیں ہیں، تو اس میں نصیحت اور تزکیے کے پہلو بھی زیادہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس آیت کو آئندہ ہفتے پڑھیں، پورے درس میں اس کا کچھ حصہ آج پڑھیں، کچھ حصہ آئندہ ہفتے، تو شاید جو ہے دو ٹکڑوں میں بانٹ دینا یہ اچھا نہیں ہوگا، تو بہتر شاید یہ ہو کہ آئندہ ہفتے ہم یہ پوری آیت پڑھیں، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا تفسیر کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔